सो पुनीत जी, ये टैंक जिम की शुरुआत कैसे हुई थी और इस टैंक से कितने बारूद निकले हैं? So Tanks Gym is the name of our brand. Yes. And my name is Puneet Sandhu, पुनीत, AKA the Tank, as they love to call me, the people. So the gym got opened around 4 years back, but the name Tank got associated with me as a person, around 15 years back. So I have been a professional bodybuilder all my life. All the pictures you are seeing is mine, and I was competing at the the heaviest weight category for the country, and I'm very fortunate to be decorated with a lot of top honors in bodybuilding, and people started calling me Tank because the way they thought that I used to look like. I used to compete in 100 kg category, so I was not as tall as somebody like you, but most of my competitors were very tall people, hence the weight, 100 kg cut you could only get once you are very tall. But I, being not that tall but still packed with a lot of muscle, and I was very fortunate to win a lot of shows just because I was stacked with muscles, I would say. So people started calling me, "ये जिड्डा ऊंचा है, उड्डा की चौड़ा है," and they started calling me, "इधर यार tank है, भाई ये tank वर्ग भाई टैंक है ना? So that's how the name got associated. And 4 years back, I just wanted to open my gym, and I wanted to name it My Gym. Like for any bodybuilder, सारी जिंदगी में वो एक bodybuilding करता है, and then he wants that he should have his own beautiful gym of his own accordance. So when I was opening the gym, I thought ये मेरा gym है, My Gym. My Gym मतलब tank da gym, tank का gym. क्या बात है? And Tanks Gym. So tank with an apostrophe. Yes. So it's a Tanks Gym. देखो, एक आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है जिसको सब लोग जानते हैं, जिसके लिए आपने काम भी किया है, पर असली जो रोल शुरू होता है ना, वो उसके बाद शुरू होता है जब अपनी जेब से कमाई हुई पूरा कैपिटल एक आदमी अपने पैशन को लगा देता है। देखिए, ये आप इंडस्ट्री वाइज ले लीजिए, तो अच्छा बॉलीवुड का एक्टर ज़रूरी नहीं है कि वो मूवी प्रोड्यूस करे तो बहुत अच्छी जाए। तो आपकी जर्नी वो कैसी रही, वो मुझे जानना है। और क्या जो बाकी जिम्स ने किया है, जिन्होंने पिछले 4 साल के अंदर या 5 साल या 10 साल में जिन्होंने 500 ब्रांचेस खोल दिए, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? क्या आपका विज़न है और कितना वो एज अ बिजनेसमैन विजन कितने हद तक आगे क्या आप सोच रखते हैं, इसी के बारे में आज ये शो होने वाला है। सो विल मेजरली आस्क अबाउट योर बिजनेसेस। सो विल स्टार्ट विद दिस कि इस जिम के एरिया कितना होगा इस जिम का? So this particular gym is, so we have quite a few branches now. Okay. In 4 years, and we are, as you said, कितने bum फोड़े हमने. So we are on a rampage now. We are on a rampage, and we are kind of expanding in all the directions. And this particular gym, we are standing in phase 5 branch of ours, and this is around 300 square feet of an area, and we have a bit beautiful outdoors also, and so we are coming up with many other. So this is gonna be our I would say the smallest gym. All our other gyms which are coming up. अभी कितने gyms हैं? Abhi we have one of this, one in sector 115, that is around 9,000 square feet, a little less, maybe 89. Similar to this, okay. A little bit bigger than this. Then we are coming up with around 14,000 square feet of the most coveted property of Mohali, that is in HLP Galleria. Okay. So we are having a corner there also. All our gyms are corner, first of all. Okay. I don't do a gym. Any personal choice for this? क्योंकि आप जब नीचे से निकले हैं तो बिल्कुल तनिष्क आई थिंक सो नीचे ही है, एंड उसके ऊपर कॉर्नर में ये जिम है। कोई पर्टिकुलर? So I always feel that in a gym, natural sunlight is one thing which really gives you a lot of energy. And once you enter a gym, natural sunlight is very important. I do not believe that gyms should be in the basement or somewhere which is like वेंटिलेशन नहीं होती, वेंटिलेशन नहीं होती, लाइट नहीं होती लोग तो। एंड ऑल्सो जब आप सड़क से जा रहे हो तो दिखना just चाहिए to see the sight of treadmills and कि बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा, दूर से पता लग जाएगा। Exactly. है ना? मोर ओवर मैंने ये देखा है कि कई जिम्स की इतनी प्रेफरेंस होती है कि विंडो होने के बावजूद उन्होंने उस पर शीशे लगाए होते हैं
कि मिरर होगा तो लोग देखेंगे बार बार अपने आप को हैं, पर इट इज़ अ गुड चॉइस अगर आपने ऐसा डिलिबरली आप कर रहे हो, देन इट इज़ रियली गुड चॉइस. बट माई क्वेश्चन अगेन, तो पहला अभी करंटली कितने ऑपरेशनल? एक ही है. Two of them are currently ऑपरेशन operational since like this is 4 years old, the other one is 2.5 years old. 2.5. So 2 gyms will be operational 1st of April. ओके, सो हम लोग अभी 2 जिम्स की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करते हैं. ये जब आपने पहली बार खोला था कितने पैसे लग गए थे? कितने पैसे लग गए थे? हाँ, I don't think I would want to say the true पर numbers. एनी अप्रॉक्स की इसमें 2 ये वाली कार आ जाएंगी. लाइक वाइज यूट्यूबर्स डू ना, उनसे पूछो कभी यूट्यूबर से तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो बताते हैं 2-3 मर्सिडीज तो आ ही जाएंगे. तो मैं इसमें क्या कम से कम I'm not exactly a YouTuber. I wouldn't know how to. So I'll consider as a 2 CR तक इन्वेस्टमेंट रहती है. More than that, of course. More than that. Oh yes, of course. Oh yeah, way more than that. And why it is so? Machines, The equipment. machines and the interiors, everything. Yeah. And let's take a round. मैं थोड़ा सा एक Sure, किसी sure, और why सेटअप पे not? चल के I really wanted to know कि approx 2-3 करोड़. This is what I'm talking about when I say the view. So once Achha. you are on the treadmill, having a beautiful view, it always enhances. It's always an added advantage. A positive Even vibes. if you and- go on to buy a plot or something, the Ah. corner plot is always 15%, 20% expensive, right? So my house in sector 32 is a corner house, so I'm lucky for that. That's You would understand. Okay, so my question again. So when you जब आप कैपिटल लगा रहे थे, जब आपको लगा था कि मेरे को अब जिम खोलना है और शुरुआत करनी है, आपने बताया कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स थी, तो यू प्रेफर लोन या फिर कैसे इस पूरे मॉडल को सेट कैसे किया आपने? कोई इन्वेस्टमेंट लिए या आप खुद ही इसके 100%? Honestly, right now, I don't have a partner or anybody like that. I'm not financed by anything, but this was Self-made. Self-made, yeah, you can say. और क्या अगर So कोई whatever, I just invested whatever I kind of, inherited or, whatever was there in all my life that I have done bodybuilding, and I have kind of done lot many things. We had a floriculture business also, Okay. growing flowers in a farm. Achha. And so whatever I could gather from all the years of my work, I just put everything in my. विश यू ऑल द लक. अब मेरे कुछ सवाल. पहला तो ये कि जिम में लोग मेंबरशिप लेते हैं, पहले 3 दिन हफ्ता आते हैं, उसके बाद नहीं आते. ये एज अ बिजनेसमैन प्रॉफिट है या लॉस है? No, it is definitely a loss. Definitely a loss. I would urge people to be. We always urge people to be more. आते रहें. They should be regular, because regular client is a repeated client, right? हाँ They will keep coming. If अगर वो 3 दिन नहीं आ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ. है ना, आप कह रहे हो 3 दिन के बाद नहीं आ रहे, तो he is very likely that he might not even renew his fees. Because, है ना, so we keep them motivated in all the ways we can. We give them good training. We give them co-curricular activities like Bhangra and all of those things. Some more boot camps and picnics and all of these things, so that they are motivated, and it doesn't look like that. A workout shouldn't look like it's saja mili hui hai. We want to make it look like that they are enjoying it. हाँ. ओके, सो लोगों को लाने के लिए हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. पर्सनल ट्रेनिंग्स एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है. मतलब ये आप एक बिजनेस के अंदर एक और बिजनेस चल रहा है पर्सनल ट्रेनिंग का. आप इसके फेवर में हैं या आपको लगता है कि ये जिम का ही पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल को अगर पर्सनल ट्रेनिंग जितनी अटेंशन दे दी जाए तो पर्सनल ट्रेनर की क्या ज़रूरत है? तो आपका क्या ओपिनियन है? Very good question, and I will be very sure that the answer you're gonna get from me is gonna be very different. Maybe. So, आपको मैं एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ. You have a nice beard, I can see. Do you go to a barber to get it trimmed or something? Yes. And why? Yes. Why? Why? Do you think it is a very skillful thing? But you need a very skilled person to get it done. आपको ऐसे लगता है? नहीं, मेरा तो एक्चुअली मेरा खुद का सलून है, सो आई प्रेफर गोइंग देयर. इट्स ओके, सो आई गॉट योर पॉइंट. Your cameraman, he's a very lovely guy. हाँ. What is his name? Sorry. साहिल कालिया. Sahil. He's a very lovely guy. He also has a beard. Do you have a salon? No. You don't have a salon, right? But you go to a salon because you think that getting a beard trim is a kind of a very skillful act, and you need a very skilled person. हाँ. है ना, कि भी वो बड़ा महंगा बड़ा ज़रूरी काम है, ये तो भाई मेरे को आता नहीं है. हाँ. है ना, but for some reason people coming to a gym, they think that they know how to do a workout. How funny is that?
इट इज लाइक गोइंग टू फोर्टिस हॉस्पिटल, हाँ। उसको बोले स्टंट कितने का है, वो तो मैं कहेगा खुद ही 12 डालूंगा, रुपए- मैं एक- खुद एक- वो 12 रुपए का स्टंट है, कहता स्टंट दे दो, मैं घर जाके लगा या लूंगा। ऐसे करो आप, या 12 रुपए का स्टंट है, मैं 15 रुपए और देता हूँ, जब 30 रुपए में बात खत्म कर यार, तू लगा दे इसको, है ना। नहीं नहीं मेरा सवाल ये है कि देखो आप ये नो हाँ मेरा सवाल, आपका सवाल पूछ लिया, अब आप उसका नहीं नहीं, जवाब मेरा दो। जवाब भी इसी पे नहीं, नहीं, काउंटर सवाल था, पर आप बोले। You hear me out because you wouldn't step into a gym हाँ most likely, with all due respect to all the gyms, because I have so much love for all the gyms, and especially in the Tri-City, they have given me so much love in 20 years that मेरे को फ्री में करते होते थे, कईयों ने तो पोस्टर भी लगाते थे मेरे को, and I was very very fortunate, and I have so much love for all the gym. Having said that, this is a gym being run by somebody who has given his 30 years into this life, and inside out I know how to run a gym, what gyms are. I smell gym, I eat gym, I sleep gyms, I have gym. You know, gym is my fucking, sorry to use It's okay, it's okay. sorry for the French. Gym is kind of my middle name, right? Okay. So anybody and whosoever stepping inside a gym, I should say उसको पहले 6 महीने सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग ही लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। एंड देन ही शुड सी टू इट 6 मंथ्स। मैं बहुत उसको वैसे बोल रहा हूँ कि 6 महीने में कुछ आता नहीं है वैसे बंदे को। नहीं बिजनेस में देखो किसी भी आई एम नॉट टॉकिंग बिजनेस, आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक जनरली। सर तो फिर ये क्यों नहीं होता है कि जब मैं आया किसी जिम में या कोई भी आया उससे फीस बताई जाती है तो उसको पहले ही बताया जाए कि दिस इज तो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए बुलाए ना। मैं सलून जा रहा हूँ, मैं सलून खुद बियर्ड काटने तो नहीं जा रहा, पर जिम में ये ऑप्शन होता है कि खुद भी कर सकते हो, पर्सनल ट्रेनिंग भी ले सकते हो। ऐसे ही सलून के अलग एपिसोड में मैं इसमें ही पूछ रहा हूँ कि एज अ बिजनेसमैन कोई मॉडल ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें यस होना चाहिए, है ना? जिसमें हमेशा पर्सनल ट्रेनिंग बीच में ही होनी चाहिए, बीच में। एंड दैट जिम शुड बी अराउंड 50,000 रुपीज अ मंथ। इतना course. अफोर्ड करने वाले लोग नहीं होएगा तो नहीं होएगा तो क्या? So this is where it lies. अच्छा। So the sad part about gym business is now कि लोग now pay करना नहीं चाहते। I'm making you come to a point, brother. Yes. I'm making you come to the point. Sure. I'm not मैं आपको बोल नहीं रहा, मैं आपको पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। आ गया है ना? I'm a clever guy. So I'm not just bronze, I'm brave. also. Oh, okay. अच्छा, so now the thing is, the good part is how funny is that कि people expect, so usually a gym fees in a beautiful gym also, like a premium gym facility, 16,000, 18,000, 20,000, 15,000 एवरेज 15,000, हाँ चलो Average, हाँ है ना? you're very right, 15,000 rupees, पर्सनल ट्रेनिंग no, a yearly package for ईयरली पैकेज, फिर तो वो 20,000 ईयरली which comes out to be say about 2500 2,000 नहीं के 2500 ऐसे कैसे बना 2500 नहीं, मैं- 30,000 हो गया। किसी भी जिम की एवरेज साल की फीस आप 2500 लेके चलो, नहीं, 2,500 नहीं, कि उससे भी कम है। मोहाली में where we are standing right now, इससे कम 15-16,000 रुपए ईयरली पैकेज है, 18,000 है, 20,000 है, चलो लेट्स से a good gyms, the gyms I will not take names, all they are very beautiful gyms, maybe more beautiful। चलो लेट्स टॉक अबाउट अ प्रीमियम जिम लाइक यू। हाँ, so आप लोग की भी 3,000 रुपए 25 अच्छा 20 2,000 1500 रुपए अच्छा पर मंथ पड़ा। हाँ 1500 रुपए पर मंथ में यू रियली थिंक तो घर कैसे चल रहे हैं सर? नहीं सुनो, हाँ बस आपने बोल ही दिया। उनको सुबह शाम गर्म पानी भी चाहिए, टॉवल भी चाहिए क्लीन, एसी भी चाहिए, AC भी चाहिए, है ना? और steam नहीं चल रहा आपका। एंड यू रियली थिंक दैट यू नीड अ पर्सन, हाँ यू नो, इसी आपकी भी- सेवा के लिए एक बंदे के लिए आपके लिए ही खड़ा हुए वो, है ना? ठीक है, हाउ ठीक है। कैन यू इमेजिन अगर आप एक दैट हाउसकीपिंग गाय, हाँ, ये आंटी जी जो हमारे हैं बड़े पुराने हैं, सो स्वीट है, सो we स्वीट। can pay हेलो her मैम, 15,000 rupees बनता है, probably, बनता है। है ना? मैं 15,000 रुपए में मैं पर्सनल ट्रेनिंग इनसे भी नहीं करा सकता। नहीं मैं समझ गया। देखो इस चीज़ के लिए अभी You know what I'm saying? यस पुनीत जी, बिजनेस के और बड़े एस्पेक्ट है जिसमें मैं और चीज़ पूछना चाहूँगा। एक इंडस्ट्री अपने आप में है न्यूट्रास्यूटिकल्स की। अब प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, प्रोटीन्स, वे, ये वर्ड बड़े कॉमन हो गए हैं। अब लगता है कि जिम की एंट्री फीस तो 1500-1800 लगती है, पर जब जाते जाते खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे जो प्रोटीन पाउडर की मार्केट भी बड़ी ग्रे मार्केट भी है, बड़ी सिंसियर मार्केट भी है। Absolutely. तो इसको जिम के साथ कैसे ऑथेंटिसाइड कैसे किया जाए कि यार ये सही है, ये गलत है? मतलब प्रोडक्ट सही है कि गलत? आप प्रोडक्ट कह रहे हैं? सही है, पर प्रोडक्ट अब मैंने पे करना ही है प्रोडक्ट के लिए, पर अच्छे प्रोडक्ट कैसे पता लगेंगे कि अच्छे हैं? क्योंकि हर
पर्सनल ट्रेनर भी सही बताए ये ज़रूरी नहीं ना. नहीं सो पहली बात तो टू फाइंड द प्रोडक्ट इफ इट इज़ गुड और बैड आई डोंट थिंक द राइट वे इज़ टू आस्क अ पर्सनल ट्रेनर, है ना Okay. ऑफ कोर्स, है ना. तो उसके लिए मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स देयर आर ऑर्गेनाइजेशन फसाई है, इट शुड बी पास फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आप बारकोड वगैरह स्कैन करो, आप बट मेरी बॉडी के लिए क्या सही है, क्योंकि है तो उसमें भी सारी रेंज बढ़िया भी मिलती है. So this is what a personal trainer is trained for that he can guide you कि आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन ब्रांड नहीं अच्छा, he will not guide you कि भी ये ब्रांड अच्छा है. ये बोलता है कि सर आपको आइसोलेट प्रोटीन की जरूरत है, आपको फिश ऑयल खाना चाहिए बिकॉज आपका LDL ओमेगा के लिए whatever it is. So that is what the trainer is going to guide you. वो उसकी ड्यूटी है. एंड बिजनेस का, जिम के बिजनेस का मंथली रेवेन्यू में से इन पाउडर्स या फिर प्रोटीन पाउडर्स से, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स देने से भी कुछ कमीशंस गेन होते हैं. Commissions, I don't know what is commission. I don't know. So मतलब मान लीजिए मैं अगर आपने पाउडर्स supplement- डायरेक्टली बेच रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, तो मेरे जिम में अगर मंथली मैं 5 लाख 10 लाख की सेल कर रहा हूँ, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसमें 3-4 लाख मेरे पाउडर्स नहीं, या प्रोटीन इतना तो पाउडर्स नहीं होता, but it also depends upon the individual 20% owner. तक रहता होगा. It all depends upon the. So there are most of the gyms do not even sell proteins. हाँ, Me coming from this industry, गाइडिंग देम वेल, because राइट. this is kind of my forte. हाँ. ये मेरा तो काम ही, so I can guide them. एंड पंजाब का तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये जो स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस लेके इन्होंने सारे इंडिया का है, पंजाब वर्ल्ड का है. Let's not say पंजाब, हाँ. वर्ल्ड का है. पंजाब में तो बहुत बाद में आया, दुनिया में बहुत है. तो पंजाब तो अभी सीख रहा है बेचारा. अच्छा. We are just kind of trying to तो understand. कुछ सही एडवाइस अगर आप उनको, मतलब ये क्या स्टीरॉइड्स करेक्ट Beautiful. कौन से है ना. ओके, यू ओके विद दैट. Absolutely, I'm a professional bodybuilder, brother. I just told you. So मेरी तो इंडस्ट्री खड़ी है उसमें. बड़ा ही सही. We eat steroids in the breakfast. But having said that, of course, I said professional bodybuilder. ओके. Not at all a person just going leisurely to a gym हाँ. or just for a fat loss. जो वो लेते हैं, that is very wrong. हाँ, But मेरा तो profession है, of course. चलो आजकल के जिम बहुत ही ट्रेंडी आ गए हैं ना. गुड लुक, बिल्ड लाइक अ टैंक, है ना. तो आजकल जिम्स में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं. मैंने तो सुना इनफैक्ट कई जिम्स में, कई आजकल जैसे क्लब्स चले जाओ वहाँ आई कैंडीज़ होती हैं. एंड देर आर फ्यू जिम्स इन दी जहाँ पे लड़कियों की फीस ही फ्री कर दी है. दे जस्ट कम सो दैट क्राउड शुड कम. सो लोग क्या क्या अट्रैक्ट करने के लिए लोग जिम मैं को लोगों को तब क्या कह सकता हूँ, आई डोंट नो. या यू राइट, मेरे को भी ऐसे सुनने में मिला एंड आई नोटिस्ड आल्सो पीपल डू दैट. वी तो डू नॉट. कभी- आई एम द आई कैंडी इन माय जिम. आ आई एम द ओनली वन विद पोस्टर्स ऑफ वेयरिंग अ बिग सो लड़कियों सुन रहे हो. मंथली कितना बना लेते हो? सिंपल सा सवाल. सर मैं मंथली कितना बना लेता हूँ इन अ जिम. आई वुडंट बी वांटिंग टू आंसर दैट. फिर भी सर बिजनेस में देखो, पता क्या, लोगों को दूर से दिख रहा है भैया क्या बात है, बंदे ने अच्छे कमा रहा हूँ, खाता पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ. आई लिव अ लैविश लाइफ. ऑफ कोर्स आई लिव अ लैविश लाइफ. इफ आई वांट टू पुट इट, आई हैव नो dearth of money for my business. I'm very much satisfied. Hence I'm opening more gyms. दैट्स, अब मैं उसी पे आने वाला था. टैंक्स जिम की अगर फ्रेंचाइजी लेनी है तो कितने की है? So sir, हमारे 3 मॉडल हैं. One is the ultra premium, you can say, the top of the line. That is a snow camo, snow camouflage, like you see in Hollywood movies में snipers बैठे होते हैं, वो snow camouflage पहना होता है, white and black में, grey में. हाँ. And then we have a medium segment, which is a forest. तो जो सबसे वो जो आप साइड वाला बता रहे हैं वो कितना है, कितना अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट उसमें? So उसमें approx investment depending upon the location and the square feet area, it should be something around 250 and can go past 3. The most premium segment is snow camouflage. ओके. Then we have a intermediate हाँ, model. which is मतलब a अगर forest किसी ने camo. जीरकपुर में खोलना है तो जीरकपुर में तो मैं नहीं कहूँगा कि स्नो camouflage वाला हमारा मॉडल खोलो. Then I will go for a forest camo. Intermediate. इंटरमीडिएट अप्रॉक्स 2.5 Less than. Sub 1.75 I would say. और ROI कितने टाइम तक आ जाता है? So हमारे मॉडल्स में अगर तुम्हारा टॉप एंड है, that should be break even in 2 years. Break जो even. थोड़ा छोटा है वो 1.5 साल में, जो 1.5 उससे भी छोटा मॉडल है साल में भी हो जाता है. अच्छा, अभी पूरे जिम हम एक बार जस्ट जिम का टूर लेते हैं Sure. एंड आई थिंक सो विल वाइंड इट अप. तो
व्हाट इज दिस सेगमेंट कॉल्ड, क्या क्या है? This is the boxing area. बॉक्सिंग एरिया, अच्छा. We have again. I have a very beautiful friends. You know, because I have been into this industry since so many years. I know boxers, MMA fighters. All of those people, they love me. I have a great bond with them. They come over to train people, and we have actually been. And it is not for just very Looks. professional boxers only. अच्छा. A lot of girls, ladies, females, you know, Self defense. housewives, they train here and they love it. तो वाइब्स यहाँ प्रैक्टिस करके कर क्या रही है? टैंक्स जिम की जो हमारी मेन बात है, मैं ये कहूँगा, our USP is the training patterns. ट्रेनिंग पैटर्न्स. Yeah. Okay. I keep guiding my. I have a. I keep doing seminars with my trainers, so I guide them how to train people. Okay. I just love it. I train myself in my gym. So you look like Mike Tyson. This is the greatest honor anybody has given me. Thank you very much, sir. He's my role model. He's the greatest guy ever to descend on the planet, I would say. And I have my childhood was, you know, kind of looking up to this man. Definitely. Let's move on to the other part. Right, sir. क्या ये बात सच है कि जिम्स के जितने शीशे होते हैं उसमें बंदा अपने आप ही पतला निकलना शुरू हो जाता है? ये एक नाई के शीशे सर, आप सर चलाते हो, और एक जिम के शीशे, ये ऐसी कुछ है. हाँ, दिस इज कार्डियो एरिया. No, this is the group classes area where we Group do class. Bhangra and yoga, Zumba, meditation, all of these things. Right? हाँ. तो Place I won't be ever found. तो इनकी क्लासेस मॉर्निंग इवनिंग. Morning and evening we have a Bhangra coach coming, and then a Bollywood dance happening, and then a yoga teacher you know coming, and then a meditation. So 3-4 classes in the morning, 3-4 in the evening. So it's very engaging, and a lot of people love it. क्या रेंट है इस पूरे? इसका rent is around 4 lakhs. अच्छा चल रहा है, आप कह रहे हैं? चल हाँ, रहा है yes, बड़े मतलब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ इसी हिसाब से कि कितनी मंथली कमाई है. अच्छा, स्टीम सोना सब कुछ है अपने पास? Absolutely, yes. ओके. Lifting area. डेडलिफ्ट, दिस इज ओके. सो म्यूजिक यूजुअली जिम के अंदर बड़ा पैपी सा रहता होता है. है. लोगों की लड़ाई भी होती है Actually, जिम लोगों की. because of the, हाँ, आई नो दैट. बट क्या यूजुअली उसकी रिक्वेस्ट के हाँ, लिए बहुत ज़्यादा आती है. हैं? हाँ, तो अभी आप एक गाना लगाओगे तो कोई ना कोई आ जाएगा कि सर ये नहीं सुनना, वो सुनना. वैलेंटाइन है, मैं डेडिकेट करना गाना. सो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक? I just one kind of genre, more of it, and the old school, you know, hard rock, AC/DCs and Guns N' Roses, John Bon Jovi, all of these people. मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तब तो मेरा जरूर चलता है, मेरा ही म्यूजिक चलता है. और सारे मुश्किल में सारे you know people, lot of people do not like it. But मैं उनको बोलता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट इट्स करता अ हूँ. टैंक्स जिम. हाँ, 1-1.5 घंटा चलाने दे, फिर जो मर्जी, फिर आप दिलजीत दोसांझ चलाओ. ये तो है ही है. सो म्यूज़िक यूजुअली प्ले करते हैं हम लोग. अच्छा, इसके अलावा अब जब हम लोग फ्रेंचाइजी की बात कर चुके हैं, हम बिज़नेस मॉडल की बात कर चुके हैं, अपनी मेंबरशिप की बात कर चुके हैं, प्रोटीन पाउडर की बात कर लिए हैं, अभी अगर आप किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो वो जैसे 2 आप ऑलरेडी फ्रीज कर चुके हैं, क्या मल्टी सिटीज़ में भी प्लान कर रहे हैं? Oh yes, we are coming up in Gurgaon, अच्छा. M3M. We are also coming up in Jalandhar. हाँ. गुड़गांव में हम 2 जगह पे आ रहे हैं. M3M प्रॉपर्टीज़ हैं. They are one of the most like high-end properties in Gurgaon, you can say. Everybody knows it. Then we are also coming up in Jalandhar. We are coming up on Airport Road as well. So 5 gyms तो हमारे मोहाली में already done हो गए हैं. And अब मेरे जैसे कुछ जिम्स आए और टिके नहीं. हाँ जी. यू नेम फ्यू, मे बी यू कंसिडर. आप गोल्ड जिम का हाल देख लो, या आप कई जिम्स कई बहुत अच्छे चल रहे हैं. आप अल्टीमेट प्रो का बात करें तो वो अच्छे चल रहे हैं. But Gold Gym तो I would say वो तो that is like the father of all gyms, I would say. है ना? बट आप क्योंकि क्या होता है पंजाब के अंदर है, चंडीगढ़ में क्रेज रहा है कि कोई नई चीज़ आई है तो सारे चले जाएंगे और फिर धीरे धीरे उसका फेड अप हो जाएगा. क्या रीज़न होता है जिम नहीं चलते हैं आपके हिसाब से? क्या रीज़न? एक ही रीज़न है मेरे ख्याल से. Just one reason. Most of the gyms are being run by people who do not belong to this industry. उन्होंने सुन लिया, शौक से कर दिया. अब जैसे I don't know मैं आपका सैरों में कितना आपकी समझ, but I personally, this is my personal opinion, it is not something to offend anybody. I just believe that कोई भी काम है दुनिया में, अगर आपको खुद नहीं आता है ना, और आपने खुद years नहीं दिए हैं, and you don't know your work, like you don't know your work, you don't know what trainers are training,
If they know more than you, with all due respect, though ऐसे तो बात नहीं है, मेरे को भी सीखने को मिलता है इनसे. But just saying, you need to know your work. That is the only way you can survive in anything in this world, I would say. तो आपको लगता है कि एक जिम का जो जिम जिसने किया है पूरी लाइफ वही अच्छा जिम चला सकता है, एक बिजनेसमैन? Sorry, मैं सिर्फ जिम की, yes, I understand ये जिम की इंटरव्यू है. हाँ हाँ. In anything in life. अच्छा, anything in life. प्रोफेशनल जरूरी. ठीक है. How can you? I don't think you can run a restaurant. एंड देन आप जितनी, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो हम उन्हीं को देंगे जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डर्स हैं, हम उनको भी दे सकते हैं जिनके पास पैसा है और जो हेल्थ इंडस्ट्री को और इवॉल्व करना चाहती है, तो वो लोग चला लेंगे, आपको लगता है? But in that case, because that is a franchisee I am giving, we will run the show. Okay. We will make sure कि वो तो बेचारे को तो नहीं पता, I understand. He just wants to run a gym. We will run the gym for तो him. इट्स फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड. ओके, फोको मॉडल में जाएंगे. Absolutely. I will never want to give a gym. आज से 10 साल बाद टैंक्स जिम का व्हाट इज द विजन, क्या होने वाला है? 10 साल is too far. 3 years में बोल सकता, 10 साल तो देखो I cannot. ये खड़ा है सर, अभी देखना हो जाने 10 साल. But still, हाँ. 3 years definitely we'll be having around 25 of our branches in all the major capitals of the country and of course in Punjab all over. So मैंने बार बार बोला है मेरे थ्रू कोई फ्रेंचाइजी आएगी 20% कमीशन मेरी साइड पर. Surely sir, surely 100%. थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू गाइस. Same नाइस here, मीटिंग same. पुनीत जी, Lovely. बहुत बढ़िया लगा. Lovely. एंड आई एम श्योर कि मैं जब बनाऊंगा अपना मूड तो मैं यहीं आऊँगा. Thank you very much.